Okay. So all of you know that Zener diode is basically used in as a voltage regulator in a circuit. Okay. So today we learn how to deal, okay, how to solve the problems which involve Zener diode in the circuit. Okay. So first of all, you would understand the IV characteristics of Zener diode. Okay. So we know in ordinary that forward bias, okay, forward bias, your Zener diodes behave like a ordinary diode. Okay, so symbol of Zener diode is slightly modified, okay, to differentiate it with ordinary diode. This is a symbol of your Zener diode. Now if you see the characteristics, okay, characteristics of, just give me 1 minute. Where's my duster? Just sorry for disturbance. So now if I draw this graph, okay, in reverse bias. So in reverse bias, this is I, okay, this is V. So in reverse bias, in the beginning, there is a negligible current, okay, and there is the sharp knee voltage, okay, sharp knee voltage where this breakdown happens, okay. This sharp knee voltage is called breakdown voltage of Zener diode, okay. So once breakdown occurs, okay, after that the voltage across the Zener diode will become constant, okay. You can see the from graph, जैसे ही आप VZ पहुंच जाओगे, अप्लाई करते हैं रिवर्स में, ओके, Zener diode operates in reverse region, reverse bias in the circuit. जैसे जैसे आप रिवर्स बायस से पहुंच जाओगे, एक बार जैसे ही आपका वोल्टेज VZ पहुंच गया, उसके बाद करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो जाएगा. That means across the Zener diode you'll get constant voltage. That's why you use Zener diode in a voltage regulation. So in circuit, if, okay, if your voltage is greater than or equal to VZ, okay, then you can replace your Zener diode with a battery. साइन देख लेना, जहाँ माइनस प्लेट है वहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है. ऑर्डिनरी डायोड में जहाँ प्लस होता है वहाँ ये आता है, तो ये बैटरी है उनकी. सो once this is on, okay, that is your applied voltage greater than VZ, okay, equal to VZ, then you can replace this Zener diode, okay, whose rating is given VZ by a battery of equivalent voltage, okay. If your VZ is less than, okay, if your VZ, V applied is less than VZ, okay, less than VZ, okay, then you can replace it by open circuit, क्योंकि ये इसको ऑन ही नहीं कर पाएगा, because if your voltage is less than VZ, then current is negligible. Current is negligible means it is open circuit, okay. So these two things you have to remember, and then whenever Zener diode is given, it comes with ratings, okay. Ratings का मतलब क्या है, जैसे एक तो VZ हो गया, what is the Zener voltage VZ, then there will be IZM. IZM मतलब है कि कितना मैक्सिमम करंट ये डायोड सस्टेन कर सकता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके. सो सपोज जब VZ आ रहा है, then it will become on, और इस ऑन स्टेट में जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, से दिस इज IZ मिनिमम, ओके. जैसे आपका इस पे वोल्टेज VZ पहुंच जाएगा, देन करंट क्या है, जो करंट है उसको बोलो IZ मिनिमम. उसके बाद अगर इफ यू आर अप्लाइंग वोल्टेज, then voltage will not increase but current will increase, and suppose it may go up to IZM.
अगर करंट IZM के बाद जाता है, okay, if current goes beyond IZM, then this diode will destroy. So we have to take care of that ratings of Zener diode. So IZM is considered in PZM. PZM क्या है? Maximum voltage which maximum power which maximum power which it can withstand or it can dissipate, okay, by Zener diode. That is PZM, and your PZM is equal to V into I VZ, क्योंकि वोल्टेज VZ है और करंट कितना है IZM. So क्वेश्चन में अगर VZ दे रखा है, PZM दे रखा है, you can calculate IZM. Okay, similarly if VZ you know IZM, you can calculate PZM. So these equations you can use while solving the questions. Okay, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, okay. So जब V is greater than VZ is a battery. V is less than VZ, it's open. Okay, and you have to make sure that current should not go beyond IZM. Okay, now we'll solve some problems. So this one question. So one Zener diode is given. Okay. So resistance is R, and it is given 12 sine omega t. Okay, and across this we are measuring voltage VR. Okay, so now the input wave is given. Okay, this input wave we are applying. Okay, of whose peak value is 12 sine omega t. Peak value is 12. Okay, so it asking what will be the output waveform. Okay, so कैसे करेंगे ये? और इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, खाली जेनर वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट से. ओके, सो यू नो जब तक इस पे 6 वोल्ट लगेगा नहीं तब तक ये ओपन है. करेक्ट, अभी बोला मैंने. तो यू नीड मिनिमम 6 वोल्ट. 6 वोल्ट लगेगा तभी ये बैटरी बनेगा. उससे पहले ओपन है. ओके, ओपन है मतलब करंट 0 है. तो जब तक ये 6 नहीं पहुंच जाता यहां तक, ओके, जब तक ये यहां तक नहीं पहुंच जाता 6, ओके, तो इसमें तो आपको सर्किट में करंट क्या है, वीआर ड्रॉ कर रहा हूँ, वीआर. ओके, सर्किट में आपको करंट मिलेगा ही नहीं, ये भी इनपुट है, करंट मिलेगा ही नहीं. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको करंट मिलेगा ही नहीं. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो इस रीजन में आपको करंट मिलेगा ही नहीं. ओके, फिर उसके बाद में एक बार ये ऑन हो गया मतलब दिस इज नाउ नेगेटिव में भी करंट मिलेगा सर? हाँ, नेगेटिव में भी करंट मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा, देखते हैं. ठीक है, पहले पॉजिटिव देख लेते हैं. सो अभी तो ये रिवर्स बायस में है. ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हमारा ये आर हो गया और यहाँ बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया. ठीक है, तो वी आर कितना हो जाएगा, ये 6 वोल्ट बैटरी हो गया, तो वी आर कितना हो जाएगा, वी इनपुट -6, क्योंकि जो ये आ रहा है वो यहाँ पर और यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो वी आर कितना हो जाएगा, वी इनपुट -6. ठीक है, इसका मतलब अभी 6 तक तो 0 है, ये 12 है, तो 12 तक जाएगा मतलब 6 तक जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा. ये मैक्सिमम 6 है, तो वापस ऐसा ऐसा इसका ऐसा आएगा. ठीक है, बढ़ेगा और ये 6 तक ही जाएगा, 6 वोल्ट तक ही जाएगा. ठीक है, अब रिवर्स में क्या होगा बताओ, जब ये है, अभी तो मैंने फॉरवर्ड लगाया, अब नेगेटिव लगाने से क्या होगा बताओ. नेगेटिव लगाने से कंडक्टिंग हो जाएगा, नीचे के साइड को मिलेगा. नेगेटिव लगाना मतलब अब ये लगाना है. ठीक है, आपका डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, आपका ऑर्डिनरी डायोड हो जाएगा, फॉरवर्ड डायोड हो गया. ठीक है, तो आप जो लगा रहे हो ये तो अब तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर आइडियल है तो. अगर आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सारा वोल्टेज क्या इसी पे आ जाएगा. ओके, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा. ओके, तो दिस विल यू गेट एज इट इज, ये आपका. ठीक है,
उसके बाद फिर से दोबारा वही जो ओके सो दिस इज योर दिस क्वेश्चन आस्क इन गेट ईसी ओके यस व्हाट इज द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर गिवन जीना डायोड ये क्लियर है यस सर। ओके सबको क्लियर है आगे चले हाँ, तो सर। नेगेटिव के केस में V इनपुट इक्वल टू VR, नेगेटिव वाले केस में V इनपुट इक्वल टू VR। हाँ क्योंकि वो यहाँ से फॉरवर्ड बायस हो गया ना ये शॉर्ट सर्किट हो गया आइडल डायोड है तो अगर ठीक है अगर वो दे रखा है कि सर अभी जैसा डायोड है ना उसके अपोजिट लिखा अगर होगा मतलब एनोड हाँ। आगे होता और कैथोड पीछे होता तो यही ग्राफ ऐसा ही आता लेकिन हाँ, जो वो- रिवर्स वो हाँ। फर्स्ट आता ना। हाँ यस 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 उल्टा हो जाता है ठीक है okay so now one question is given you have 15-volt battery okay this is 500 ohm resistance here I have one more 1500 ohm resistance okay and here we have a diode Zener diode of 10 volts okay is asking what is the current flowing through this diode okay तो आई जेड बोल दो उसको okay. तो सबसे तो पहले पता करना पड़ेगा ना कि ये ऑन है कि नहीं है तो ये ऑन है क्या नो सर। हाँ नहीं सर। कैसे पता चला ऑन नहीं है हाँ सर, वो जो 15 वोल्ट वाला है ना, 15 हम्म वोल्ट, सर उससे देखेंगे पहले कि वोल्टेज कितना मेंटेन कर रहा है इसके अक्रॉस। हम्म और सर ये वैसे भी उल्टी डायरेक्शन में लगा हुआ है ना। अच्छा हाँ तो सर रिवर्स पैस्ट होगा, तो रिवर्स पैस्ट होगा तो ऑफ ही नहीं, रहेगा। तो वोल्टेज हमको रिवर्स बायस में चाहिए रिवर्स बायस में तो चाहिए जेनर डायोड का तो ये बताया रिवर्स बायस में चाहिए तो इसको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो कितना आ रहा है तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे वी ओपन अक्रॉस 1500 तो ये ओपन हो जाएगा तो ये करंट जाएगा नहीं ओके सो वी ओपन ओके इसको मैं ओपन कर रहा हूँ वी ओपन यहाँ अक्रॉस 1500 कितना आ रहा है तो दिस इज 15 वोल्ट्स ओके डिवाइड बाय 2000 ओम ओके इनटू 1500 ओम कितना आ रहा है 2 कट गया ओके 5 3 4 ओके तो 45 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 11 पॉइंट ओके 44 1 ओके 2 11.25। हाँ 11.25। तो ऑन है कि नहीं है ऑन है क्योंकि ये 10 वोल्ट दे रखा है ठीक है विजेट इज गिवन 10 वोल्ट्स ऑन है सर ऑन है तो ऑन है ठीक है तो बस अब करंट निकाल लो सो वीजेड इज ऑन अब यहाँ पे आपका जो वोल्टेज डिफरेंस दे रखा है अब निकालो करंट कितना आ रहा है तो अभी ये 10 वोल्ट्स है ठीक है तो कैसे कैसे निकालेंगे करंट सर जो पैरेलल में वोल्टेज है उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा। वेरी गुड तो यहाँ पे सर अभी भी वोल्टेज 10 वोल्ट जीनर डायोड सर अभी जो जीनर डायोड ऑन होगा ना वो रिवर्स बायस में होगा ना। हाँ वो तो रिवर्स बायस में यूज करते हैं उसको ठीक है इसको रिप्लेस कर देंगे बैटरी से ठीक है तो अभी क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना 10 वोल्ट है इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 5 वोल्ट ठीक है ना ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ 10 लग रहा है तो यहाँ 5 लगेगा तो हमको यहाँ करंट पता चल जाएगा आई कितना है टोटल आई कितना है तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास में आई हमारे पास आ जाएगा ओके 5 वोल्ट्स यहाँ 5 वोल्ट्स है सो 5 वोल्ट्स डिवाइड बाय 500 okay so 1/100 okay that means 0.01 ampere that is your 10 milliampere 10 milliampere करंट आ रहा है ठीक है और यहाँ पर करंट कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट है इससे दिस इज करंट से आई डैश बोल दो तो आई डैश कितना है आई डैश है 10 upon 1500 ओके
सो 1/150 कितना आएगा? 1/150 कितना आएगा? 6.6 मिली एम्पियर। ओके, तो मेरा ये वाला आई जेड कितना आएगा? मेरा आई जेड आएगा टोटल आई माइनस आई डैश। तो आई है मेरा 10 मिली एम्पियर माइनस 6.6 मिली एम्पियर, दैट विल गिव मी 3.33 मिली एम्पियर। दिस इज आंसर। क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का करो ऐसे ही। This is 120 volt battery is given. Okay, this is Zener diode of 50 volts. Okay, 5 kilo ohm. And then we have here 10 kilo ohm. Okay, so ये पूछ रहा है आई जेड कितना है? आई जेड कितना है? कैसे निकालोगे? तो पहले ओपन सर्किट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पहले ओपन सर्किट चेक कर लो, ऑन है कि नहीं बता दो मुझे। इसको अगर ओपन कर दें ऑन तो ये 10 का 15 तो कितना आएगा? वी ओपन ऑन है, ऑन है ना। 120 वोल्ट डिवाइड बाय 15 किलो ओम इंटू 10 किलो ओम। ओके, किलो ओम। ओके, ये 5 3 4 कितना 80 वोल्ट आ रहा है, तो ऑन है। ठीक है, तो आप निकालो बस। ऑन है तो आप कैसे निकलेगा? आई जेड कितना निकलेगा? आप देखो, ये एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट है। ओके, तो इस सर्किट को ध्यान रखते समय मैं कुछ फॉर्मूले भी लिखाऊंगा, पर समझ लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना। अभी इस सर्किट में एक बार ये ऑन हो गया, अगर ये ऑन है और ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज फिक्स्ड है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फिक्स हो गया। ठीक है, और ये वोल्टेज फिक्स है, ये वोल्टेज फिक्स है, तो ये भी वोल्टेज फिक्स हो गया, तो यहाँ पे करंट भी फिक्स हो गया। ठीक है, ये अगर सब कुछ फिक्स्ड है तो यहाँ वोल्टेज फिक्स हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज फिक्स हो गया, आई जेड भी फिक्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को वेरी करता हूँ, इसको फिक्स रखिए, तो क्या होगा? ये 120 को 150 कर दिया मैंने, तब क्या होगा? सर आई पे फर्क पड़ जाएगा। बस ये आई इस आई पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये आईएल तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ तो फिक्स, एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, वोल्टेज फिक्स हो गया, तो करंट फिक्स हो गया। अगर अब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो आई जेड चेंज होगा, आई चेंज होगा, आई जेड चेंज होगा, आई एल चेंज नहीं होगा। ठीक है, और आई जेड भी कितना चेंज होगा? आई जेड मैक्स तक। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी वोल्टेज लगा सकते हो। ओके, यू शुड नो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ दिस डायोड। अगर आई जेडम दे रखा है तो करंट कैन गो अप टू आई जेडम। ओके, एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट इज आर मैक्सिमम, आई मैक्सिमम हियर। ओके, सो यू कैन सी हियर नाउ सेम थिंग, दिस इज कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा, इफ आई एम वेरिंग दिस रेजिस्टेंस, तब क्या होगा? यहाँ पर अगर वोल्टेज फिक्स है तो अगर इस रेजिस्टेंस को वेरी करूं चेंज होगा, तो ये करंट चेंज होगा, और ये करंट चेंज होगा, ये करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज फिक्स है, ये वोल्टेज फिक्स है, तो ये वोल्टेज फिक्स है, यहाँ करंट फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। अगर इसको नहीं चेंज करोगे तो यहाँ करंट हमेशा फिक्स है। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ करंट चेंज होगा और यहाँ करंट चेंज होगा, यहाँ इस करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम थोड़ा दिमाग में रख लेना। ओके, नाउ हियर दिस क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज IL? So IL will be 50 divided by 10 kilo ohm. Just 1 minute. Okay, so 5 milliampere. Okay, यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है? 20 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, यहाँ पे 70 आ रहा है, तो ये I कितना हो जाएगा? I 70 volts divided by 5 किलो ओम। ओके, 14 milliampere. ओके, तो मेरा I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा 14 minus 5, 9 milliampere. सबका आ रहा है आंसर? यस सर। हाँ, एनी डाउट?
सर अगर हमने यहाँ इस ब्रांच जो है जिस ब्रांच पर हमने जीनोर डायोड अभी लगाया है वहाँ अगर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा है तो क्या आएगा I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल आएगा. हाँ हाँ बिल्कुल. आई हम आई करेक्ट सो आई इक्वल टू आई जेड आई प्लस. जेड प्लस आई हाँ एल. हाँ और सर अभी आपने जो बताया ना अगर हमने आई एल चेंज किया हाँ तो आई जेड चेंज होगा. हाँ. मतलब हमारा जो राइट हैंड साइड है वो चेंज हो रहा है तो हमारा लेफ्ट साइड भी चेंज होना चाहिए ना. कैसे चेंज होगा? मैं वही तो बोल रहा आई हूँ. जेड अगर इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा. अगर ये फिक्स है, ठीक है, अगर आपने इसको चेंज किया, ये मैक्स हो गया तो ये मिनिमम हो जाएगा. ये मैक्स हो गया तो ये मिनिमम हो जाएगा. ये आपस में चेंज होंगे, टोटल करंट चेंज नहीं होगा. हाँ ये ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि टोटल करंट कांस्टेंट हो जाता है. हाँ अगर वोल्टेज बैटरी कांस्टेंट है तो अगर इसको सप्लाई कर दिया तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा. ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो करंट फिक्स है. तो ये चेंज होगा और ये चेंज करोगे तो ये और ये चेंज होगा. ठीक है, बस ये दिमाग में रखना ताकि फिर फॉर्मूले याद रखना पड़े. ऐसे बहुत से फॉर्मूले भी बनाते हैं जीरो डायोड पे लिख के, और वो जरूरत नहीं है उस फॉर्मूलों की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो. ठीक है. देन एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ मैं. ठीक है, दिस इज माय diode. Here I have an ordinary diode. Okay, and you're asking what is the current value. Okay, so what is the current value? This is 450 ohm. You're asking what is the current value in 450 ohm. This I value is asking 12 volts they have given. Okay, and V joint is given 6.8, and this is a silicon diode of 0.7 volts. Okay, so asking what is the value of I. तो सेकंड सोर्स क्या है सर? सेकंड है, ये 12 वोल्ट है, ये 6.8 है, ये 0.7 वोल्ट डायोड है. तो ये सोर्स नहीं है, ये तो ओपन सर्किट लोड है. ओके. ठीक है, तो मुझे चाहिए भाई, जहां चाहिए अब वहां केसीएल लगा दो, बस सीधी सिंपल बात है. अब पहले तो देख लो कि ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है. वी ओपन कितना आ रहा है हमारा? वी ओपन कर देंगे तो 12 का 12 वोल्ट यहीं पे आ जाएगा ना. ये ओपन है तो 12, तो इसका मतलब ये ऑन ही है. इसको चाहिए ऑन होने के लिए 6.8, इसको चाहिए 0.7. ओके, तो ये ऑन है. ठीक है, सो वी ओपन कितना है? वी ओपन इज 12 वोल्ट्स. सो बोथ डायोड्स आर ऑन, बोथ डायोड्स आर ऑन, बोथ बीच में डायोड्स. रेजिस्टर है ना 450 ओम का. हाँ तो करंट फ्लो नहीं हो रहा ना. करंट ओपन, यहाँ से ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा नाउ? दिस इज, ये ऐसा हो जाएगा सर्किट. ये हो गया बैटरी 6.8, ये हो गया बैटरी. अब देखो इसमें ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, इसमें उल्टा है. इसमें ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नहीं है पर हम इसको बैटरी ऐसे रिप्लेस करते हैं. ठीक है, इसमें गलती मत करना एग्जाम में. 6.8 वोल्ट, 0.7 वोल्ट्स. ओके, एंड दिस इज 12 वोल्ट्स. ओके, एंड दिस इज 450. बस आई निकाल लो, आई क्या हो जाएगा? सिंपल केसीएल लगा दो. केवीएल 12 माइनस 6.8 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा? 7.5. 7.5. ओके, डिवाइड बाय 450 ओम. ओके, ये हो गया 4.5 वोल्ट्स, ये 450 ओम. ओके, तो कितना गया? 10 मिली एम्पियर आ गया. क्लियर? यस सर. ओके, वो तो सेम ही क्वेश्चन है. चलो एक और कर लेते हैं. दिस इज 10 volts. Okay, this is 40 ohm.
Okay, this is 6-volt battery. Okay, and this is 100 ohm. Okay, and this is 10 volt, 40 ohm. Okay, 6 volt, and this is given 6 volt battery is given. Okay, पूछ रहा है calculate okay power dissipated okay power dissipated in Zener diode. कितना पावर डिसिपेटेड हो रहा है जेनर डायोड में वो निकालना है. तो डायोड ऑन है कि नहीं पहले देख लो. ऑन है. ऑन है. अब बस आपको खाली आई जेड चाहिए. ठीक है, आई चाहिए, यहाँ से आई जेड चाहिए निकालने के लिए. तो आई जेड कितना हो जाएगा. तो पहले आई निकाल देते हैं. पहले आई निकाल लो. तो ये 10 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, तो यहाँ 4 वोल्ट है. तो आई कितना जाएगा 4 डिवाइड बाई 40 1/10 एम्पियर. ओके 100 मिली एम्पियर. ओके एंड देन यहाँ पे करंट कितना है 50 मिली एम्पियर सर. IL आपका हो जाएगा वोल्टेज 6 है 6 डिवाइड बाय 100 6 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 60 मिली एम्पियर. कितना आ रहा है 60 मिली एम्पियर. ओके 60 मिली एम्पियर. तो आइडियल कितना जाएगा 40 मिली एम्पियर. ओके सो पावर कितना जाएगा पावर कितना आ रहा है 40 इंटू 40 मिली एम्पियर इंटू 6. ओके कितना आ रहा है 640 मिली एम्पियर है 40 ना. मिली वॉट. सो 240 मिली वॉट्स आ जाएगा पावर. ओके अभी तो सेम ही क्वेश्चन है. अच्छा फिर इस पे हमने 4/40 कैसे लिया. 4/4 कहाँ से है. इनपुट तो 10 वोल्ट है ना. 10 किस केवीएल लगाएंगे ना. केवीएल यहाँ पर ये 6 है ना यहाँ पर. ये बैटरी बन गया ना अब तो 6 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 4 10 माइनस 6 4 हो गया ना. केवीएल लगा दो इसमें. केवीएल ये अब कोई अब किसका ऑन है माइक. सर मेरा सॉरी. हाँ हाँ ठीक है. अब एक क्वेश्चन पूछा है गेट में. दिस इज 12 volts 12 ohm. okay this is 7 volts. okay diode गया है. okay this was diode and एक रेजिस्टेंस दिया है RL. ओके 12 ohm 7 volts और ये इसका है 4 volts. तो ये पूछ रहा है कि what is the range of IZ. okay what is the value range of IZ possible. तो इसके लिए इसने क्या रखा है IR. ठीक है और IZ की रेंज दे रखी है इसने. IZ की इसने रेंज दे रखी है 5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर. ओके अब ये पूछ रहा है IL की रेंज पूछ रहा है. IL की रेंज कितना है बताओ. IL की रेंज कितना होगा. तो पहले आई निकालने टोटल. सर 7 माइनस 4/12. 7 माइनस 4 3 हो गया. I हो गया 7 माइनस 4 3 हो गया. 3/12 कितना गया 1/4 250 मिली एम्पियर. 250 मिली एम्पियर आ गया. ठीक है अब 250 में से 5 जा रहा है इधर IZ में. ये I है IZ है. ओके अगर यहाँ 5 जा रहा है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा कितना 245. ओके यस सर. टू मैक्सिमम कर कितना जाएगा IZ कितना जाएगा मैक्सिमम 245. ओके और मिनिमम कितना जाएगा मिनिमम 100 150. 150 मिली एम्पियर. तो रेंज जगह आंसर मुझे रेंज आंसर 150 टू 250 एम्पियर. ठीक है मिली एम्पियर का आंसर हो गया. आपका IL का रेंज हो गया. ये IL का रेंज ऑफ IL. ओके अब ये बोल रहा है आपको रेंज ऑफ IL पता है. रेंज ऑफ IL पता है
तो रेंज ऑफ RL निकालो, रेंज ऑफ RL निकालो। V कैसे निकाल equals to IR. इक्वल्स टू बी। अब आपको आई पता है, सर। आई की, हाँ सर I कांस्टेंट रहेगा हमेशा सर। नहीं, रेंज आई तो कांस्टेंट रहेगा ना भी। ये मैंने क्या बताया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो ये फिक्स हो गया अपने आप ही, ठीक है। ओके सर। ये करंट तब तक चेंज होगा जब तक ये इसको इस इनपुट को चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे कुछ भी और करते सर रहो। सर एक और चीज सर, जब ये ऑफ रहेगा तो भी तो कुछ होगा सर, IL। हाँ, जब ऑफ रहेगा तो देखेंगे, तब पूरा करंट यहाँ से जाएगा, तब भी आई रहेगा अगर ऑफ होगा तो भी सर ये रहेगा कांस्टेंट। नहीं तब तो क्या, तब तो अगर ये ऑफ हो गया तो फिर करंट यहाँ, करंट जो आई डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। करंट यहाँ से वही। जाएगा, तो फिर इसको चेंज करोगे तो भी करंट चेंज हो जाएगा। अगर ये ऑन नहीं है तो ये ऑन स्टेट में बोल रहा हूँ, ऑन स्टेट के अंदर, ऑन स्टेट में इसका वोल्टेज फिक्स हो गया, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, तो करंट फिक्स हो गया। अब यहाँ कुछ जो भी चेंज होगा यहाँ होगा अगर इसको चेंज करोगे तो। ये ऑन स्टेट के लेना सर। हाँ ये ऑन स्टेट के लिए, ठीक है। अब सर रेंज, हाँ सर हम जब V ओपन फाइंड आउट करते हैं तब डायोड के आगे का वोल्टेज हम ओपन सर्किट कंसीडर करते हैं ना, मींस इस केस में 7/12 ऐसा लेना होगा डायोड ऑन है या ऑफ देखने हाँ, तो के लिए। इसको ओपन करके देख लो, ओपन करके देख लो, और यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा वही वोल्टेज यहाँ पर आएगा। डायोड का एक चीज ध्यान रखो, जब तक रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है डायोड का, तब तक वो सर्किट में करंट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब करंट भी चेंज नहीं करेगा तो वोल्टेज भी यहाँ से आप हटा दो तो वोल्टेज तो वही को करेगा, क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस तो है नहीं ना। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो वो चेंज करता, अभी यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो ओपन में वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज बाद में इसको लगाने पे भी आएगा, क्योंकि ये कोई करंट को तो चेंज कर नहीं रहा है, ठीक है। तो सर अभी डायोड ऑन स्टेट में है या मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें ऑन इसको स्टेट में या ऑफ? इसको ओपन करके देखो, ठीक है। ओपन करके देखो तो कितना आएगा, RL दे नहीं रखा है ना इसमें। दे नहीं रखा हाँ, है। तो फिर इसको ऑन स्टेट मानो, क्वेश्चन में देखो, इसको ऑन स्टेट मानो, ठीक है। इसको ऑन स्टेट मान के 4 वोल्ट मान के इसको बैटरी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब निकालो इसका रेंज ऑफ आई, निकालो रेंज ऑफ RL, निकालो कितना आ रहा है, रेंज ऑफ RL कितना आ रहा है, लो रेंज आ रही है 26.67 ओम। 36.6 का आएगा, 26.6 हाँ 26.6 क्या है, किलो ओम है, क्या है किलो ओम, ओम में है, ओम में। ओम 16.3 और 16.3, ओके। तो ये आंसर सही है, ओके। इस क्वेश्चन में तो प्लीज एक्सप्लेन रेंज भी- कैसे फाइंड आउट भी- मुझे समझ भी- में आया। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, आपको आईजेड इसको ऑन मान के आईजेड की रेंज दे रखी थी, आईजेड की रेंज दे रखी थी, उससे हमने क्या है आईएल की रेंज निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो तो हमेशा 4 वोल्ट ही है, तो आरएल कितना, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू तो आई आर एल, ओके। तो करंट की रेंज पता है आपको, इसकी रेंज पता नहीं है, तो RL चाहिए, तो RL क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय, अगर ये लिख रहे हो मिनिमम लिख रहे हो तो ये RL मैक्स हो जाएगा, RL मैक्स तो ये 150, ओके। ऐसे ही RL मिनिमम चाहिए तो 4 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 245। 240। हाँ हाँ, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज हो जाएगी, ओके। क्लियर, चले आगे, यस सर। ठीक है। एग्जाम में आया क्वेश्चन देख लेते हैं गीट में, चलो बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, एक्चुअली जिनर डायोड में जो क्वेश्चन आते हैं उसको 4 तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। एक तो है, पहला तो है कि वी इनपुट, VI एंड RI आर फिक्स्ड, ओके। अभी जानना जरूरत नहीं है, पर अगर जैसे बुक्स में, बोलसेट की बुक्स में ऐसे दे रखा है, क्लासिफाई करके रखे हैं, ये V इनपुट, ओके, एंड दिस इज माय डायोड, and this is my IL, this is RL, okay, this is my RL. So RL की वैल्यू दे रखी है 1.2 किलो ओम, ओके। इसकी दे रखी है VZ इक्वल टू 10 वोल्ट्स, और PZM दे रखा है आपका 13
मिली वोल्ट्स, और ये दे रखा है 1 किलो ओम। ओके, और वी आई दे रखा है आपका 16 वोल्ट्स। ओके, तो पूछ रहा है कैलकुलेट बी लोड कितना है, बी एल, वी आर कितना है, आई जेड कितना है, और पी जेड कितना है, निकालो। कैसे करोगे इसको? 1.2 किलो ओम दे रखा है। तो पहले आई निकाल लेते हैं। पहले तो देखो ये ऑन है कि नहीं है। हाँ सर। बी ओपन कितना है? भी इसको इसको ओपन, इसको ऑन करने के लिए भी इसकी एक मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू, आरएल की मिनिमम वैल्यू कितनी है जब ये ऑन होगा, ठीक है। सर ऑफ है तो हाँ, ये ऑफ है। ऑफ है, ऑन है? ऑफ है ना? यस सर ऑफ है। ऑफ है। 10 वोल्ट से कम आ रहा ये है ना? सर 10 वोल्ट 8.72। 8.72 आ रहा है, सबका देख लो, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये ऑफ है, अभी ओपन हो गया, ठीक है। अब निकालो कितना आ रहा है, वी एल, वी आर, आई जेड, पी जेड कितना आ रहा है। तो वी एल कितना आ जाएगा अभी? अब तो ये सिंपल डिवाइड हो जाएगा। 8.72 ही तो आएगा ना VL, बी वी ओपन एल, सर्किट वोल्टेज। हाँ 8.72 से वी एल आ गया, ठीक है, चलो तो वी एल हो गया, वेरी गुड। वी एल हो गया, ये वी जेड भी हो गया, ठीक है, वी एल हो गया, ठीक है। वी आर कितना हो जाएगा, वी आर बताओ। तो 16 माइनस 8.72। 16 माइनस 8% 7.72 वोल्ट, ठीक है, 7.27 27 वोल्ट, ठीक है, 7.28। 27, ठीक है। और आई जेड कितना आ जाएगा? सर 0। आई जेड 0, वेरी गुड। और पी जेड भी 0। 0। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया कि हर रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ठीक है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ 3 किलो ओम। ओके, अब निकालो कितना आ रहा है। 12 volts। We open 12 volts। अभी ये ऑन है कि ऑफ है? ऑन है सर। ऑन है, ओके, तो कितना 10 वोल्ट्स है यहाँ पे ना, 10 वोल्ट्स। सर। और पीजेडएम कितना देखा था, 30 मिली वोल्ट्स। ओके, तो आपका वी ओपन है, ये ऑन हो गया। ओके, तो निकालो वी एल कितना आ रहा है आपका, वी एल कितना आ रहा है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, ओके। और ये आपका 12 वोल्ट कैसे आ जाएगा वी एल? RL के मतलब ओपन सर्किट बोले ना, अब VL 10 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, ओपन सर्किट है ना, वी ओपन सर्किट 12 वोल्ट, ओके। तो आपका वीएल कितना है आपकी, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ओके। और 10 वोल्ट यहाँ आ गया, तो ये यहाँ पे 10 आ गया, ये 16, 6 यहाँ पे आ गया, तो वी आर आपका कितना गया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। वी आर आपका 6 वोल्ट आ गया। आई जेड कितना आ जाएगा, आई जेड तो 6 डिवाइड बाई 1 कूलम, 6 मिली एम्पियर यहाँ से करंट आ रहा है, आई 6 मिली एम्पियर, ओके। यहाँ पे कितना आ रहा है करंट, 3.3, ओके। यहाँ 10 डिवाइड बाई आई एल, 10 डिवाइड बाई 3, ओके, तो 3.33 मिली एम्पियर। तो मेरा आई जेड कितना हो जाएगा, 6.67 मिली एम्पियर। और ठीक है, आ जाए 6 मिली एम्पियर आएगा क्या, चेक करो कितना आ रहा, 6 थोड़ी आएगा, 6 आ रहा, 6 माइनस 33, तो आएगा 2.67 मिली एम्पियर, ठीक है। तो पावर कितना डिसिपेट कर रहा है, IZ into V। कितना जाएगा, अराउंड 26 समथिंग ना, कितना आ रहा है, 26 वोल्ट्स, ओके, मिली वोल्ट्स, ओके। और मैक्सिमम कितना है, 30 से, तो मैक्सिमम से कम है, तो इसका मतलब वो हम इसको इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, तो ये डिसिपेट नहीं, मतलब ये बर्न नहीं होगा।
तो ये तो हो गया आपका। देखो पहले मैंने एक लोड लगाया जिसपे था कि वो ओपन हो रहा था, डायोड ऑन ही नहीं हो रहा था। दूसरा मैंने लगाया, डायोड ऑन हो गया, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखिए इनके बीच में कोई ऐसी वैल्यू तो होगी ना जो आरएल की मिनिमम वैल्यू होगी। भी पहले Yes, मैंने sir. लगाया, पहले मैंने 1.5 लगाया, ओपन हो गया, ऑन नहीं हुआ। अब 3 पे ऑन है, तो इससे कुछ नीचे की वैल्यू भी होगी जहां पे ये ऑन हो जाए। ओके, वो निकालो। तो अब इसको ऑन मानना है, अब देखना नहीं ऑन है। अब मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल सो दैट इट इज ऑन। ओके, दैट मींस अब यहाँ पे 10 वोल्ट सही है। ये मुझे पता चल गया 1.5 पे ओपन है, 3 पे ऑन है। अब 3 से नीचे को मिनिमम वैल्यू होगी जहां पे भी ये ऑन होगा। ओके, उसको ऑन की वैल्यू निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएल? तो कैसे हम निकालते हैं वी ओपन? वी ओपन मतलब निकालते हैं हम लोग अब की वी ओपन इक्वल टू वी जेड है, ठीक है। वी ओपन कैसे निकालते हैं हम लोग? ये मेरा आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 1 किलो, और इसकी वैल्यू अब देने रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? वी आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल इंटू वी आई। ओके, सो वी जेड मेरा दे रखा 10, ओके, 10 डिवाइड बाय आर एल, आर है मेरा 1 किलो ओम, ओके, 1 into 10⁻1 किलो ओम, 10⁻3 ohms, ओके, प्लस आर एल 1.6 किलो. इंटू 16, ओके। तो अब मेरा आर एल को यहाँ से आर एल को निकाल लो, आर एल कितना आ रहा है? 1.6 किलो. 1.6 किलो ओम। बाकी लोग बताओ कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। सबका आ रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल कितनी आ रही है? सर 5/3 किलो। 5/3, 5/3 कैसे आएगा? 3 से नीचे, 3 से तो नीचे है, इसको सॉल्व करो ना। 5/3 वही आ जाएगा सर, 1.6 किलो. हाँ, और ये 30 दे रखा है, 30 मिली वोल्ट्स पीजेड मैक्स। ओके, तो ये तो हो गया आरएल की मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? जस्ट वी ओपन को वी जेड रख दो, वी ओपन को जस्ट वी जेड रख दो, तो उससे जो आरएल की वैल्यू आएगी दैट विल बी आर मिनिमम। दिस इज आर मिनिमम। ओके, आरएल मैक्स कैसे निकलेगा? आरएल मैक्स कैसे निकलेगा? यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इस डायोड को ऑन करेगी। ओके, मैक्स कैसे निकलेगा? आरएल मैक्स निकलेगा आपका, ये तो फिक्स है 10 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम जाएगा आई जेड मैक्स, तो यहाँ पे जो करंट जो आएगा वो आई एल मिनिमम होगा। ओके, तो आपको अगर आई एल मिनिमम पता है, सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज योर आर मैक्स। ओके, आर मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए वी ओपन चाहिए, आर मैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको आई एल मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आई एल मिनिमम कैसे पता चलेगा? ये आई पता है, यहाँ से अगर आपको पता चल जाए आई जेड मैक्स I पता है, माइनस आई जेड है. बस हाँ, तो आई पता ही है आपको, आई जेड मैक्स पता ही है आपको यहाँ से, ठीक है। ये 30 दे रखा है, 10 मिलेगा तो आई 10 मिली एम्पियर आ जाएगा, ये पता है करंट, तो आपको आई मिनिमम पता चल जाएगा। तो उससे करके निकालो कितना आ रहा है, आर एल मैक्स कितना आ रहा है? आर आई जेड मैक्स होगा ना सर में, कहाँ पे? यहाँ पे सर जनरल डायोड में। हाँ, ये 30 दे रखा है ना, पीजेड मैक्स 30 दे रखा है। ओके, 30 मिली वॉट्स, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। तो आई जेड मैक्स कितना आ गया? कितना आ जाएगा आई जेड मैक्स? 3 मिली एम्पियर. 30 अपॉन 10, ओके, 3 मिली एम्पियर आई जेड मैक्स। और आई कितना आ रहा था इसमें, इस क्वेश्चन में? 6 मिली एम्पियर. 6 मिली 6 मिली एम्पियर. एम्पियर। 10 से 16 6 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो आई एल मिनिमम कितना हो गया आपका? ओके, आई एल मिनिमम हो गया आपका 3 मिली एम्पियर। ओके, तो आर एल मैक्स कितना हो जाएगा आपका? 10 डिवाइड बाय 3 मिली एम्पियर, दैट इज 3.3 किलो ओम। क्लियर? यस सर. ओके, ये मैक्स मिनिमम वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं
जो वी इनपुट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक 5 मिनट का ब्रेक दे दे, यस सर। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक दे दे, 5 मिनट का ब्रेक है। It's important. सर हम्म, अभी जो हमने प्रॉब्लम किया ना उसमें VR 7.27 वोल्ट ऐसा आ रहा है क्या? अभी हमने जो प्रॉब्लम किया नहीं तो उसमें तो 6 था ना क्वेश्चन में था अभी तो 10 नहीं 6 था ना, भी 10 वोल्ट तो वीजेट था और 16 वोल्ट लगा था बैटरी का, तो वीआर तो 6 वोल्ट ही होगा ना। VR मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज वही आएगा ना 8.72 मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस। VR मतलब जो लोड
हाँ तो हमने कनेक्ट किया उसके अक्रॉस। वी ओपन आ रहा है आपका 8.73। ठीक ठीक है, ठीक है, करेक्ट। यस हाँ, वी ओपन आपका 8.73 आ रहा है। तो वो पहले क्वेश्चन में जब 1.2 किलो ओम लिया था हमने, 1.2 किलो ओम लिया था तब, ठीक है, तब वो सर तो भी 1.2 किलो ओम लिया था, तब वो वीजेड आपका ओपन हो गया था ना, तब डायोड पे तो डायोड ओपन हो गया था, क्योंकि 10 वोल्ट आ ही नहीं रहा था। उस केस में आपका वी आर जो आया था वो 8.16 माइनस 8.73 7.27 आया था। ओके, सेकंड केस में आपका वी ओपन 12 वोल्ट था, तो वो ऑन हो गया था। अब ऑन होते ही क्या हो जाएगा, उसमें 10 वोल्ट आ जाएगा, तो 16 माइनस 10 आपके वी आर आपका 6 वोल्ट ही आएगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ वी इनपुट। ओके, आपको एक सर्किट दे रखा है। ओके, प्लस माइनस वी इनपुट दे रखा है, इसकी वजह से 220 ओम। ओके, एंड देन एक डायोड दे रखा है, दो हो गए डायोड। वी जेड है 20 वोल्ट्स, और आई जेड हम दे रखा है इसका, आई जेड हम दे रखा है इसका 60 मिली एम्पियर। ओके, यहाँ से आई जेड फ्लो कर रहा है, और यहाँ से एक आर एल दे दिया है 1.2 किलो ओम। ओके, आई एल दे दिया है। अब पूछ रहा है डिटरमाइन द रेंज ऑफ वी आईज, ओके, that will maintain Zener diode in on state, maintain Zener in on state। ठीक है, अब कि हमको जेनर को ऑन ही मानना है, जेनर को ऑन मान के हमको वी इनपुट की रेंज निकालनी है। ठीक है, तो एक तो पहले तो हमको चाहिए मिनिमम वोल्टेज, यहाँ पे ओपन हमारा 20 वोल्ट हो। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम 20 करने के लिए कितना वी इनपुट चाहिए, वो वी ओपन से मिल जाएगा। यस सर। तो वी ओपन निकाल लो पहले। तो वी ओपन आपकी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट मीटर मान के, ये मिनिमम चाहिए हमको इतना। तो उसके लिए हमारा वी इनपुट कितना हो जाएगा, वी इनपुट 20। ओके, तो ये कितना होता है हमारा आर एल। ओके, 1 आर एल डिवाइड आर अपॉन आर एल इंटू वी आई, तो यहाँ से निकलेगा अपना। ठीक है, वी आई, तो वी आई कितना आ जाएगा, 20 इंटू आर 220 ओम प्लस आर एल। ओके, इसको किलो में करके तो 0.22 किलो ओम प्लस 1.2 किलो ओम। ओके, इंटू डिवाइड बाय 1.2 किलो। तो यहाँ से वी इनपुट कितना आ रहा है, निकाल के बताओ। 23.67 वोल्ट। 24 वोल्ट। 23.67 वोल्ट। ओके, ये तो हो गया आपका। हाँ, ठीक है सर, ठीक। ये तो वी, ये क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू है वी इनपुट का। ठीक है, अब वी मैक्स के लिए मैंने क्या बताया था, वी मैक्स कैसे निकालेंगे। अब ये फिक्स है, आई जेड एम हो जाएगा फिर। ये फिक्स है, तो ये चेंज होगा ही नहीं। ओके, तो आपको अगर आपको चाहिए आई चाहिए, तो क्या आई क्या होगा, आई जेड प्लस आई एल। अब ये फिक्स है, तो अगर इसको बढ़ाना मैक्स करना है, तो यहाँ मैक्स हो जाएगा, करंट मैक्स हो जाएगा। तो करंट मैक्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई जेड एम मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और आई एल मैक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, आई एल की वैल्यू आपको दे, आई एल की वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। अभी आई एल की वैल्यू कितनी है, आई एल की वैल्यू कितनी है, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने अभी कहा, मतलब कौन मैक्स और कैसे कब बोल रहे हो। इस क्वेश्चन में हमने एक वी इनपुट लगाया, ठीक है ना, तो यहाँ वोल्टेज फिक्स है, यहाँ वोल्टेज फिक्स है, यस इसका तो करंट फिक्स हो गया, यस लोड फिक्स। लोड फिक्स है, आईएल फिक्स हो गया, उसका वैल्यू कितना आईएल का जो फिक्स हुआ निकालो, कितना आ रहा है, 16.67 मिली एम्पियर। कैसे निकाला सर वी अपॉन 20 divided by 1.2 ओके, कितना आ गया 16.67 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। ये तो फिक्स हो गया। अब अगर मैं इस वी इनपुट को बढ़ा रहा हूँ, मैक्स कर रहा हूँ,
तो मेरा क्या मैक्स कितना बढ़ाने पे ये फिक्स है, तो ये बढ़ा, अब ये बढ़ाने से ये बढ़ेगा और इसको भी हम आई जेडम से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस सर्किट में जो आई मैक्स आएगा, आई मैक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, IZ max 60 मिली एम्पियर प्लस 16.6, 76.66. ओके, तो 76.67 मिली एम्पियर, ओके। ये आई मैक्स फ्लो होगा भाई, आई मैक्स फ्लो होगा तभी तो ये ड्रॉप आई मैक्स होगा, ठीक है। ये तो फिक्स, ये ड्रॉप तो फिक्स है, तो यहाँ ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसके वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। तो आप निकाल लो वी इनपुट मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स आर प्लस वी जेड, और वी जेड जो दे रहा है 20, तो अभी ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो वी इनपुट कितना जाए, आई मैक्स कर लो, आई मैक्स 76.67 मिली एम्पियर इंटू 220 ओम प्लस 20 वोल्ट्स, ये होगा आपका वी एन मैक्स, वी इनपुट मैक्स कितना आ रहा है, थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स 36.86 वोल्ट, ओके। तो ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है कि कैसे निकालना है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, समझ के करना ज्यादा आसान है फॉर्मूला में और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। फॉर्मूला भी बताऊंगा, एक आध क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, वो उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो उसके लिए थोड़ा फॉर्मूला चाहिए होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी अब एक डायोड, अब दो डायोड ले लेते हैं, 30 वोल्ट्स 500 किलो में, क्या ये ओम है, जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन, 500 ओम होगा, 500 ओम, ओके। इस पे 20 वोल्ट, ओके। हियर वी हैव 1 किलो ओम, 10 वोल्ट, और यहाँ पे है आपके पास में 2 किलो ओम, ओके। तो यहाँ पे भी ऐसे दो डायोड देख लो, ठीक है। ऐसे जो दो डायोड होते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं प्री रेगुलेटेड सर्किट, प्री रेगुलेटेड सर्किट, मतलब इसके वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए इसको दो डायोड रखते हैं, पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पे अच्छा रेगुलेशन मिले, ओके, तो इसके वोल्टेज को इससे कंट्रोल करते हैं, मतलब यहाँ फिक्स करते हैं, और इससे क्या होता है, मतलब आपका रेगुलेशन अच्छा होता है, मतलब आपका वेरिएशन ज्यादा नहीं आता वोल्टेज में, ये हमेशा वोल्टेज को रेगुलेट रखता है एक ही कंपेयर में, तो एक ही जगह दो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि, हालांकि तो पहले पता करना पड़ेगा कि ऑन है कि नहीं है, क्वेश्चन में इन्होंने दिया नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन गेट का ही है, फिजिक्स का है, गेट फिजिक्स में है, ओके। पूछ रहा है व्हाट इज द वोल्टेज, ओके, across 2 kilo ohm and current, and what is the current from flowing through 2 kilo ohm, ये दो चीज निकालनी है आपको, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कैसे करेंगे भी, अगर पहले तो पता हो कि ऑन है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, पहले ऑन होगा सर, हैं दोनों ऑन है, नहीं चेक करना पड़ेगा, भाई दोनों को ओपन कर दो, ओपन Yes, करके sir. निकाल लो यहाँ वोल्टेज, इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुमको ये पता, मिडिल वाला 1 किलो में 2 किलो में सर, ये 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ये इन दोनों को ओपन मान लो, फिर कंडीशन देख लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओपन है तो यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक है, दोनों को ऑन मान लो, इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको ऑन, इसको ऑफ, दोनों को चारों केस कर सकते हो ना भी, इसको दोनों को ऑफ मान लो, दोनों को ऑफ मान, दोनों हट जाएंगे, ठीक है। फिर आप कंडीशन चेक कर लो, ओपन वोल्टेज कर लो, हाँ
सर सॉरी सर, आपका आवाज कट गया था थोड़ा सा, हाँ। तो मेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए क्या था सर? हाँ, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 किलो ओम में कितना 2 किलो ओम पे अक्रॉस कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। ठीक है, तो पहले Okay, तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये दोनों ऑन है कि नहीं है। अगर ऑन है तो ये तो फिक्स हो गया 10 वोल्ट, तो ये क्या, ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय करंट आ जाएगा सीधे सीधे ही। ठीक है, सर एक बार इस केस की भी ओपन का formula बता हाँ तो वी ओपन कर लो यहाँ पर, ये वी ओपन करके देख लो यहाँ पर, ये वी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। पहला वाला ओपन है सर। हाँ, तो अभी करंट निकल, करंट कितना आ रहा है, 3.5 है ना, 3.5 करंट कितना आ रहा है, आई 30 वोल्ट डिवाइड बाय 3.5 किलो ओम, कितना करंट आ रहा है बताओ। 300/35 कितना मिली एम्पीयर करंट आ रहा है, 0.857 मिलियन, 857 मिलियन सर। एक सेकंड 8.57 मिलियन एम्पियर। 8.5 मिली एम्पीयर है। यस ठीक सर। है, तो अभी 30 वोल्ट आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इसमें कितना ड्रॉप होगा, सर D1 ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा ना भी यहाँ पे, यहाँ से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, 25.5। ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट ही जा रहा है, तो भी आप Yes, sir. 25 वोल्ट आ रहे, तो ये तो ऑन ही है। यस सर। ठीक है, इसका क्या बताओ, फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 25 8 वोल्ट और चला जाएगा यहाँ से, 25 से 8 तो भी 15 आ रहा है, यहाँ 10 ही है, ये ऑन हो जाएगा सर। दोनों ऑन हो जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, और अभी अभी तो इसके इसमें तो पता चल गया, वरना आप चारों कैसे लगा के देख लिया करो, इसको उनको ऑन कर दो, एक को ऑफ कर दो, एक को ऑन कर दो, एक को ऑन कर दो, तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो आपका एज्यूमेशन गलत है, और तो बस ऐसे करके आप चेक कर लो सारे डायोड्स को, सर मल्टी डाटा। हाँ वन मोर थिंग। हाँ ये तो सर दोनों के दोनों वोल्टेज है ना सर। हाँ तो पहले तो सर 10 वोल्ट ही स्टार्ट हो, जैसे वो डायोड में हम करते थे कि जो मिनिमम वाला है कट ऑफ हाँ फ्रीक्वेंसी का, हाँ हाँ कट ऑफ वोल्टेज का पहले मिनिमम होता है, इसमें नहीं होगा सर। हाँ, तो इसमें इसमें भी हमको पता चलता है यहाँ पे वोल्टेज इतना आ रहा है, इसका मतलब ये ऑन ही है। ठीक है, ओके इतना सर, ओके। इतना पता चल गया ये ऑन ही है। अब बस सिंपल निकाल लो करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा। दे सर रखा है हमें मुझे इसकी कैलकुलेशन 1 किलो। अगर ये रेजिस्टर नहीं होता हाँ तो सर ये इसमें यही माना जाता है जो मिनिमम वोल्टेज है हाँ वही हाँ ऑन होता है। हाँ, मिनिमम वोल्टेज आनी चाहिए एटलीस्ट, हाँ जितनी मिनिमम वोल्टेज उतनी आनी चाहिए, ओके सर, ओके। 10 वोल्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट अगर फर्स्ट डायोड के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हम आई इनटू उसका जो रेजिस्टर 500 वो करेंगे ना। हाँ हाँ, यहाँ वोल्टेज 30 में से कितना ड्रॉप हुआ, बाकी यहाँ बच गया, फिर यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, बाकी यहाँ बच गया, क्योंकि सब सीरीज में हो गया ना, अगर ओपन है तो सब सीरीज में हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू ये V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सब निकाल लिया। V1 खत्म हुआ, कितना बचा है, यहाँ से खत्म हुआ कितना बचा, तो उससे हम निकाल लिया। ठीक है, तो करंट कितना जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर। डी ऑप्शन दे रखा है इसका, सही भी है वो आंसर। ठीक है, आगे चले। सर एक सेकंड सर। सर आपने पहले आई जो निकाला वो टोटल करंट है 8.57 मिली एम्पियर हाँ का। हाँ, टोटल करंट है। एंड देन सर आपने वोल्टेजेस कैसे कैलकुलेट किया, थोड़ा सा बता दीजिए इसमें। फिर अब सपोज मेरे 8.5 है, अब 8.5 मिली एम्पियर करंट आ रहा है इनटू 500 ओम्स, दैट इज 0.5 किलो ओम। ओके, मिली एम्पियर किलो से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4.25 समथिंग वोल्ट्स। Yes, ओके, sir. तो ये 30 आ रहा है, 30 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे, 26 26 या 20 ही चाहिए। ठीक है, 26 में से फिर यहाँ पे 1 इंटू 8 करंट 8 चला गया, 26 में से 8 चला गया, कितना बचा यहाँ पे 14। यस सर। ठीक है, यहाँ कितना चाहिए, 10 चाहिए, ऐसे करके ओके करना ओके। है। यस सर। ठीक है, अभी कराएंगे मल्टी डायोड सर्किट्स भी कराएंगे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे डायोड तब कैसे सोल्व करेंगे, अभी आपका जस्ट में क्वेश्चन भी आया है उसका। तो सर तो बी आउटपुट तो 10 वोल्ट आ जाएगा और हाँ, आई सर 10/2 है ना। 5 मिली एम्पीयर आ जाएगा। ठीक है, 10/2 किलो ओम, 5 मिली एम्पीयर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है, ये 500 ओम दे रखा है। ओके, यहाँ एक डायोड दे रखा है, और ये दे रखा है 5 से 20 वोल्ट्स वेरी हो रहा है बैटरी आपकी, और यहाँ पे आपका दे रखा है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है,
तो अब पूछ रहा है इस लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस पी मैक्स, ओके, और पी मिनिमम का रेशियो क्या है। इस लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण पी मैक्स और उसमें कितना दे रखा है, हो रहा है, एक मिनट, जिसका वोल्टेज नहीं दे रखा, क्या क्वेश्चन देखना, वीजेड कितना दे रखा है, वीजेड दे रखा है 10 वोल्ट्स। तो इस करंट में आप 5 लगा रहे हो, फिर 20 लगा रहे हो, 5 से 20 की रेंज में लगा रहे हो इसके अंदर, ठीक है। तब पी मैक्स और इसमें करंट फ्लो होगा आई एल मिनिमम से आई एल मैक्स मैक्स, ओके। यस सर। तो उसका वो पूछ रहा है कि कितना इसको ऑन रखते हुए, इसको ऑन मानते हुए कितना यहाँ पर होगा, करंट कितना होगा। ऑन नहीं है, सॉरी, ऑन नहीं है, मतलब ऑन तो जब होगा जब जब रेंज आएगी तो, ठीक है। तो पहले तो वी ओपन निकाल लो, इसको ऑन करने के लिए कितना चाहिए हमको, वी इनपुट कितना चाहिए, बताओ कितना चाहिए, वी इनपुट कितना चाहिए हमको ऑन करने के लिए, मिनिमम ऑन करने के लिए इसको कितना चाहिए। VZ इक्वल टू 10 वोल्ट के बराबर वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, वी ओपन वी जेड, ओके, वी जेड इक्वल टू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल के वी आई। तो यहाँ से वी आई आ जाएगा आपका वी जेड 10, चाहिए 15 सर, वोल्ट, कितना चाहिए, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। 15 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या, 15 वोल्ट से पहले अगर आप 5 हम 5 लेते हैं, तब ये क्या, ये ओपन है, नो सर। हाँ ठीक है ना, ओपन है। तो ओपन के केस में करंट कितना है, करंट ये सपोज ये 5 वोल्ट्स है, इनिशियली बैटरी 5 वोल्ट्स है इन द बिगिनिंग। तो ये 5 ओम का 5 ओम, तो यहाँ पे इसमें कितना पावर आएगा, वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ पर, तो आई हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 1.5, सो 5 अपॉन 1.5 किलो ओम, ठीक है। कितना आएगा वोल्टेज, ये हो गया आपका 50, ओके, 1 3 10 अपॉन 3 आपका करंट आ गया, ओके। और पावर कितना आ जाएगा, पावर पी मैक्स पी आई पी स्क्वायर आर। आई स्क्वायर कर लो, इसके अक्रॉस देखने, आरएल के अक्रॉस देखने सर। आर एल, ओके, आई स्क्वायर इंटू आर 1 किलो ओम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पावर मिली वोल्ट्स में आएगा आपका 11.11 मिली। 100 अपॉन 9 ना, 100 अपॉन 9 मिली वोल्ट्स, यस 100 सर। अपॉन, ठीक है। अब पी मैक्स, अब पी क्या, एक बार यहाँ पे 15 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो फिर तो ये किलोवाट ना, 100/9 किलोवाट ना, किलोवाट आएगा। ये आई कितना है, ये आई मिली एम्पियर है ना, आई मिली एम्पियर में ना, भी आई अपॉन 3 आई ये मिली एम्पियर में है, ये वॉट ओके। नहीं आएगा सर। तो वाट्स में जाएगा, वाट्स में वाट जाएगा, ठीक है, मिली एम्पियर में वाट्स में जाएगा, चेक करो एक बार, मिली वोल्ट्स में जाएगा ना, भी ये कि आई स्क्वायर करना है ना आपको, आई स्क्वायर किया तो ये मिली स्क्वायर, ये मिली एम्पियर स्क्वायर हो गया, सर, किलो 1 हो गया, मिली किलो को काम 100/9 कर देगा और 1 किलोवाट। मिली वॉट बच जाएगा। हाँ ठीक है। अब पी मैक्स क्या होगा, तो V स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर कितना है 10, क्योंकि एक बार 10 हो गया ये, उसके बाद तो कुछ होगा ही ना, एक बार 10 हो गया तो उसके बाद तो ये यहाँ पे 10 फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 फिक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर 100 अपॉन 1 किलो ओम, ओके। कितना ये 100 मिली वॉट। 100 मिलीवाट, रेशियो कितना आ जाएगा पी मैक्स और पी मिनिमम का, 9। पी मैक्स अपॉन पी मिनिमम, 9 आंसर दे रखा है। सर इस डायोड के लिए हमें जो इनपुट वोल्टेज मिला जब हमने ओपन कंडीशन ली तब 15 वोल्ट था ना, फर्स्ट स्टार्टिंग। मतलब जब हम वोल्टेज 10 वोल्ट रखेंगे तभी भी डायोड ऑफ ही होगा ना, हाँ जब हम पीएल मैक्स हाँ कैलकुलेट करेंगे इस केस में भी। करेक्ट, ठीक है। अभी करके देखना इसको, और थोड़ा और करके देखना, ठीक है। अभी जैसे मैंने तो यहाँ ले लिया 10 वोल्ट है,
सपोज यहाँ 14.9 वोल्ट्स है, तब इसमें इसमें कितना पी 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 कितना आ रहा है, वो पी इससे लेस आ रहा है क्या, वो चेक कर देखना तुम लोग, अज्यूम करके 14.9 वोल्ट्स। ओके, ये मैं 14.9 वोल्ट करके देखता हूँ इसको, ठीक है। और इसको करके, इसका ये होमवर्क है, कल बताना मुझे, मैंने चेक नहीं किया इसको, ठीक है। होमवर्क करके इस केस में इसमें पावर लॉस कितना आ रहा है निकाल के बताना मुझे। सर 14.9 वोल्ट। हाँ हाँ, सर प्लीज रिपीट करोगे क्या होमवर्क है, मतलब ये क्या कंसीडर करना है, भी इतना वोल्टेज सिर्फ कंसीडर करना भी 14.9 वोल्ट्स कंसीडर करो, और यहाँ पर निकालो कितना पावर लॉस हो रहा है 1 किलो ओम में, है। ओके, ठीक है। वैसे भी तो क्या आता है, ये 1.5 गुना है तो दुगना इसमें आएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3, 1:3 आएगा तो इसमें 10 से कम ही आएगा, ठीक है। इसमें 10 से कम आएगा, हो जाएगा वो भी, वो से 5 आएगा तो 10 से कम ही आएगा। चलो, तो 10 वाला आंसर सही है। ओके, अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है ना। जो हमारा रेगुलेटर सर्किट है उसी के लिए, सपोज ये हमारा वी इनपुट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ हमारा डायोड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक आर होता है। तो हम कैसे करते हैं, हमको अगर आर आई निकालना है इस सर्किट में, और इसको ऑन मानते हुए, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको ऑन मानते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। ये वी जेड, ओके, और ये वी इनपुट। तो मुझे आर आई चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आर आई वी आई माइनस वी जेड अपॉन आई, ठीक है। अब और तो वी पता ही है, वी आई पता ही है, आई पता होना चाहिए आर निकालने के लिए, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूँ वी आई माइनस वी जेड, और आई क्या होता है मेरा, आई होता है मेरा आई जेड प्लस आई एल। तो कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बस फॉर्मूले लेके जो जहां लगाना है उसमें वैल्यू लगा के निकाल देना, ठीक है। और एक चीज मैंने बताई थी कि आर आई और कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरा ये जो V है, ये वी आई मैक्स, ये V मेरा मिनिमम है, ओके, ये मिनिमम है, तब मेरा क्या होगा, आई जेड क्या हो जाएगा, आई एल मिनिमम हो जाएगा, यस सर, आई मिनिमम। ठीक है। और आई एल मैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ से कुछ आई आ रहा है, ये मिनिमम है तो ये मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और है, वी सोर्स वी आई, अगर मिनिमम की वैल्यू दे रखी है वी आई मिनिमम, ओके, माइनस वी जेड, और ये इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ आई जेड मिनिमम तो आई एल मैक्स, ओके। और एक आर आई का फॉर्मूला वी एल अगर मैक्स है, वी आई अगर आपका मैक्स है, ठीक है, तो वी आई मैक्स सर ये माइनस, आर आई मीन के लिए है, मैक्स के लिए सर? ये मिनिमम के लिए है, नहीं, आर आई मीन है सर, इसमें मैक्स है आर आई। आर आई तो फिक्स है ना, आर आई तो फिक्स है यहाँ पर, इसको ओके इसको सर, वेरी कर रहा हूँ, वी को रेंज दे रहा हूँ मिनिमम से, ओके ओके, ओके। ठीक है। और ये हो गया आपका आई जेड मैक्स और आई एल मिनिमम, ओके। इसको लिख के रख लो, काम आएगा तो ले लेना यूज, एक क्वेश्चन में आएगा काम, ठीक है। ओके, और वो जो करंट डिवीजन है वो भी पता ही होना चाहिए आपको, करंट डिवीजन का फॉर्मूला भी पता ही होना चाहिए, कैसे आई जी करते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ओके। डिटरमाइन, ओके, वी एल आई एल आई जेड एंड आई आर, ओके, फॉर द फिगर गिवन 1.283, ओके। सो एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, एक ओके, दिस इज माय सर्किट, प्लस माइनस 20 वोल्ट दे रखा है,
220 ohms दे रखा है, ठीक है, एंड वी हैव गिवन ए VL IL, ओके, और RL की वैल्यू दे रखी है 180 ओम, RL दे रखा है 180 ओम, ओके। तो निकालो, आपको निकालना है VZ, और VZ दे रखा है आपको 10 वोल्ट्स, ये 10 वोल्ट है, पावर दे रखा है PZ मैक्स दे रखा है, PZ मैक्स दे रखा है आपको 400 मिलीवॉट्स। पानी पीता हूँ तो गैस बन गई है, अभी सही था मेरा पेट।